Good morning, students, class 7th. So get ready for the GK class today. I am taking chapter number 3. Two chapters are already completed. So we are coming on the chapter number 3. And chapter number 3 is famous tribes. Tribes मतलब जनजातियाँ. तो इंडिया की जो फेमस ट्राइब्स हैं उनके बारे में इस चैप्टर में है. There are a number of tribes in India which form an important part of the total population. हिंदुस्तान में बहुत सारी जनजातियां हैं जो कि इसकी एक बड़ी जनसंख्या के बड़ी जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. The lifestyle of tribal people is very different from that of people living in other parts of the country. जो ट्राइबल पीपल हैं उनके जीने का जो तरीका होता है वो बाकी लोगों से थोड़ा भिन्न होता है. Most tribes engage in agriculture, hunting and gathering and animal rearing for their livelihood. ज़्यादातर जो जनजातियां हैं वो खेती का काम करती हैं, शिकार करने का काम करती हैं, गैदरिंग एंड एनिमल रियरिंग और पशुपालन का काम करती हैं अपने आजीविका के लिए, लाइवलीहुड के लिए. So now read the descriptions and write the names of the tribes. Use help box. So the description of the tribe is given here and you have to guess that which tribe must be this one. मतलब to about which tribe this paragraph is written over here. So this tribe is mainly found in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Andhra Pradesh and Odisha. The main occupation of the people of this tribe is agriculture. They also herd cattle for their livelihood. They speak one of the Dravidian languages. ये ट्राइब मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में मुख्य तौर से पाई जाती है. The main occupation of the people of this tribe is agriculture. इस ट्राइब के लोगों का मुख्य पेशा खेती करना है. They also herd cattle for their livelihood. ये लोग अपनी आजीविका के लिए जानवरों को भी पालते हैं. They speak one of the Dravidian languages. और वो एक द्रविड़ भाषा को बोलते हैं. इस ट्राइब का नाम क्या है? नेम ऑफ दिस ट्राइब इज, दिस इज गॉन ट्राइब, GOND, गॉन ट्राइब. Second, this tribal community is from the northeastern Indian states of Assam and Meghalaya. ये असम और मेघालय की ट्राइब है. And found mainly in the northern region of the Brahmaputra River Valley. ब्रह्मपुत्र रिवर वैली के उत्तरी भाग में ये पाई जाती है. They are also found in Bangladesh. The people of this tribe usually speak Sino-Tibetan language, which is derived from देवनागरी स्क्रिप्ट. इन लोगों की जो भाषा है वो सिनो तिब्बतन है, जो कि जिसकी स्क्रिप्ट भी क्या है? देवनागरी है, हिंदी की तरह. देयर मेन ऑक्यूपेशन इंक्लूड्स टी प्लांटेशन एंड सेरिकल्चर. इनका मुख्य धंधा जो है टी प्लांटेशन मतलब चाय के बागवान ये लगाते हैं चाय के. और सेरिकल्चर मीन्स रेशम उत्पादन जो है ये करते हैं, सेरिकल्चर. सो दिस नेम ऑफ दिस ट्राइब इज बोडो ट्राइब्स. दिस ट्राइब ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू द शिनकुकी मिजो ग्रुप ऑफ ट्राइब्स and has been recognized as one of the scheduled tribes under the Constitution of India. The people of this tribe speak Hindi, English and Mar languages. Even though they make their livelihood from the farming, they are exploring the handicrafts industry which with changing times. ये जो ट्राइब है इंडिया की, ये शिनकुकी मिजो ग्रुप को बिलोंग करती है.
and has been recognized one of the scheduled tribes, और एक scheduled tribe है ये ST under the Constitution of India, भारत के संविधान के हिसाब से. The people of this tribe speak Hindi. ये लोग हिंदी, इंग्लिश और हमर लैंग्वेज बोलते हैं, हमर भाषा. Even though they make their livelihood from farming, ये अपनी आजीविका के लिए खेती करते हैं. They are exploring the handicraft industries, और हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं. सो इस ट्राइब का नाम है हमर ट्राइब, हमर ट्राइब. नेक्स्ट ईयर दिस ट्राइब हेल्स ओरिजिनली फ्रॉम झारखंड. ये झारखंड की ट्राइब है. दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्टेट ऑफ बिहार. ये लोग पूरे बिहार में फैले हुए हैं, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में. द पीपल ऑफ दिस ट्राइब स्पीक मदुरई लैंग्वेज. इनकी जो मुख्य भाषा है वो मदुरई है. दे ऑल्सो परफॉर्म डांस कॉल्ड नुपुर ऑन स्पेशल ओकेजन्स. खास मौक़ों पे ये जो है नुपुर डांस करते हैं. प्रीवियसली दे वेर वुड कटर्स. पहले ये लकड़ी काटने काम करते हैं. बट नाउ दे हैव टेकन टू फिशिंग एंड अर्थ कटिंग. लेकिन अब ये जो है मछली पालन और खेती का काम भी करते हैं. द फ्रीडम फाइटर बिरसा बिलोंग टू दिस ट्राइब. बिरसा मुंडा आपने सुना होगा. तो बिरसा इसी जाति का जो है बिलोंग करता था, और इस जाति का नाम है मुंडा ट्राइब. नेक्स्ट वन इज दिस ट्राइब इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट progressive tribe of India. They can be found in metro cities as Kolkata, Delhi and Mumbai, and smaller cities such as Patna, Bhopal and Hyderabad. The people of this tribe speak Kuruk, a Pahari language, which is also taught in Ranchi University. Many of them are educated and therefore involved in various professions. ये जो ट्राइब है, the most progressive tribe, ये इंडिया की गिनी जाती है. दे कैन बी फाउंड इन मेट्रो सिटीज. ये मेट्रो सिटीज में भी होते हैं ये लोग, जैसे कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई में. एंड स्मॉलर सिटीज में भी ये लोग, पटना, भोपाल और हैदराबाद में. द पीपल ऑफ दिस ट्राइब स्पीक. इस ट्राइब के लोग कुरुक और पहाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं, विच इज ऑल्सो टॉट इन रांची यूनिवर्सिटी. और ये जो कुरुक भाषा है ये रांची यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई जाती है. मेनी ऑफ देम आर एजुकेटेड. बहुत सारे इनमें से पढ़े लिखे हैं. देयरफॉर इन्वॉल्व इन वेरियस प्रोफेशंस. और ये अलग अलग प्रोफेशंस में है. तो ये एडवांस ट्राइब है. सो द नेम ऑफ दिस ट्राइब इज ओरन ट्राइब. इसका नाम है ओरन ट्राइब. सो वी हैव डिस्कस्ड हियर द 5 डिफरेंट ट्राइब्स: मुंडा ट्राइब्स, हमर ट्राइब, ओरन ट्राइब्स, बोडो ट्राइब एंड गॉन ट्राइब. एंड सो यू डू this in your book and learn it. Okay, so now more to know, there is a note written over here. Matrilineality is the system where the descent is traced through the mother and her ancestors and usually involves the inheritance of property. The Khasi, Jaintia and Garo tribes from northeast region practice this unique system and form one of the biggest communities in the world that believe in matrilineality. Matrilineality is the system. एक system है matrilineality, एक पद्धति है. इसमें क्या किया था? The descent is traced through the mother and her ancestor and usually involves the inheritance of property. Descent is traced through the mother and her ancestor and usually involves the inheritance of property. यहाँ पर फादर की जो मदर का वर्चस्व है ना, और उसके एंसेस्टर का, उसके पूर्वजों का वर्चस्व होता है, और वही जो है प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं. इसमें खासी, जैंतिया और गारो ट्राइब्स है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन प्रैक्टिस दिस यूनिक सिस्टम एंड फॉर्म वन ऑफ द बिगेस्ट कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड. और ये दुनिया में एक सबसे बड़ी कम्युनिटी है दैट बिलीव्स इन मैट्रिलिनियलिटी. मैट्रिलिनियलिटी का मतलब हो गया जो मातृपक्ष को प्रधान मानता है, वो मैट्रिलिनियलिटी है. तो इसमें ये खासी, जैंतिया और गारो ट्राइब्स है. सो आज के लिए इस वीडियो को देखिए और डू योर वर्क. थैंक यू. गुड बाय फॉर नाउ. सी यू नेक्स्ट.